ٹی وی کی علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ میٹھیانی کے قریب گاؤں عالم کا بان میں محکمہ جنگلات کی مبینہ زیادتیوں اور کرپشن کے خلاف برڈ برادری کا شدید احتجاج۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ جنگلاتی عملہ غیر قانونی درختوں کی کٹائی اور فروخت میں ملوث ہے، جبکہ آواز اٹھانے پر مقامی لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات نظام الدین مشہوری کی اس رپورٹ میں۔ کے مٹھیانے کے قریب گاؤں عالم کے بان کے رہائشیوں کا محکمہ جنگلات کے مبینہ کرپشن کے خلاف احتجاج۔ اس موقع پر جمن بھٹ، چنیسر بھٹ، یامین بھٹ اور دیگر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مٹھیانے کے جنگلات میں تعینات کرپٹ فارسٹر شکور خشک، علی اختر ماچھی، طارق سومرو اور دیگر اہلکار ڈی ایف او کے ساتھ ملی بھگت کر کے دن رات جنگل کے درخت کاٹ کر معمولی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 14 چوکڑی مکمل طور پر فروخت کی جا چکی ہے، جبکہ 16 چوکڑی سے 150 ایکڑ، 25 چوکڑی سے 80 ایکڑ اور 26 چوکڑی سے 110 ایکڑ زمین فروخت کر کے لاکھوں روپے کمائے گئے ہیں اور یہ لوگ معمولی ملازم سے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کے قریب ہی ہماری رہائش ہے۔ جب ہم نے غیر قانونی درختوں کی کٹائی روکنے کی کوشش کی تو فارسٹر شکور خشک، نجی چوکیدار علی اختر ماچھی اور دیگر ملازمین نے ایک ہفتہ قبل یامین محمد جمن لکمیر اور علی نواز بھٹ کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں۔ مظاہرین نے محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسران، چیئرمین نیب، اینٹی کرپشن ڈپٹی کمشنر نوشر فیروز اور ایس ایس پی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف درج جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں اور کرپٹ فارسٹر شکور خشک، نجی واچمین علی اختر ماچھی اور دیگر ملوث افسران کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ جی ایک سال گزرنے کے باوجود بھی پنجاب اور سندھ حکومت کو معیشت کو ملانے والی مورو قومی شاہراہ کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ قومی شاہراہ کا کام انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، جبکہ ضلع نوشہر و فیروز میں 2 ٹول پلازے قائم ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں مورو سے انور علی سولنگی کی یہ رپورٹ۔ گزشتہ 2022 کی موسلادھار بارشوں کے بعد مورو قومی شاہراہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار بن چکا تھا، جس کے بعد وفاقی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بجٹ منظور کی گئی، جس کا کام جو ہے شروع 1 سال قبل پہلے شروع کیا گیا تھا، مگر کام کی جو رفتار ہے وہ سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث حادثات جو ہیں روز کا معمول بن چکے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں مورو قومی شاہراہ پر، جہاں میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ مورو قومی شاہراہ کا جو کام ہے وہ انتہائی متعلقہ ٹھیکیداروں کی جانب سے سست روی کا شکار ہے۔ جب ہماری یہاں موجود علاقہ مکین اور مسافرین سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ضلع نوشہر و فیروز کے اندر 2 ٹول پلازا قائم تو ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، مگر جو قومی شاہراہ کا جو کام ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں کروا دیا گیا ہے، جس کے باعث مورو قومی شاہراہ پہ حادثات جو ہیں وہ روز کا معمول بن چکے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رات کے اوقاف کے وقت مورو قومی شاہراہ کا جو کام ہے وہ سست روی کا شکار ہے، جس کے سبب رات کے اوقاف کے وقت جو ہے ڈکیتیاں اور لوٹ مار بھی روز کا معمول بن چکی ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ فوراً متعلقہ ٹھیکیداروں اور قومی شاہراہ کا نوٹس لیا جائے اور کام جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل کروا کے دیا جائے، تاکہ مسافرین اور مقامی لوگوں کو آنے جانے میں آسانی میسر ہو۔ جی ناظرین، لوہر دیر سے رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ کے مطابق لوہر دیر بلانک میں ختم بخاری کی بڑی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ہزاروں افراد شریک رہے، جبکہ 500 کے قریب مرد و خواتین علماء کرام اور حافظ کرام فارغ ہو کر ان کی دستار بندی اور چادر پوشی کی گئی۔ تقریب سے جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سراج الحق، جمعیت اسلامی لوہر دیر کے امیر مولانا اسد اللہ خان، محتمی مفتی عرفان الدین، مولانا کلیم اللہ، مولانا احسان اللہ نے خطاب کیا، جبکہ اس موقع پر سابق ایم پی اے ملک بہرام خان، سابق ایم پی اے اعزاز الملک،
साबिर हुसैन अवान समेत कसीर तादाद में उलमा कराम हजारों अफराद मौजूद थे। मेहमान साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के दीनी मदारस में 35 लाख से ज्यादा तलबा जेर तालीम हैं। दीनी मदारस हुकूमत की मदद के बगैर अवाम के चंदों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल इस्लामी निज़ाम से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि दीनी मदारस को दहशत गर्दी से जोड़ना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि 24,000 गजा के मुजाहिदीन ने इसराइल का भरपूर मुकाबला किया। हालांकि इसराइल को अमेरिका, बरतानिया और भारत की मदद हासिल थी। ईरान का इसराइल को, पाकिस्तान का भारत को और गजा के मुजाहिदीन का इसराइल को शिकस्त देना इस सदी के मौजज़ात है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और दीगर दुश्मन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके इसे लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के उलमाए कराम की जानिब से अफगानिस्तान तालिबान को पाकिस्तान में मुसल्लह कार्रवाइयों के खिलाफ फतवा जारी करने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल कुरान और सुन्नत के आदिलाना निज़ाम के नफाज में है। शाहपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मास ने मदर एंड चाइल्ड कॉम्प्लेक्स में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ अथॉरिटी MSGHQ अस्पताल समेत दीगर जिले अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मास ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान 7,58,490 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें करना हमारी तरजीह है। वालिदैन, इसातिज़ा और उलमा कराम पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल की उम्र में बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाके कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के दौरान फील्ड में घर घर कतरे पिलाने के लिए 2,929 मोबाइल टीम्स फराइज सर अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मास ने इस मौके पर मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन बाजारों में बच्चों की ज्यादा आमदोरफ्त के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 55 ट्रांजिट कैंपस कायम किए गए हैं। बखर से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नजाकत नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक आज अलल सुबह असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान राना मोहम्मद जमशेद का विजिट अवामी शिकायत पर मूसा खेल डीजल एजेंसी जो हाईवे के हदूद में कायम की गई है और असर वसूख की वजह से अरसा दराज से रवां दवां थी, मगर आज एक दबंग मेरिट पसंद ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान राना मोहम्मद जमशेद ने मौका पर जाकर तमाम मुसलहतों को खातिर में ना लाते हुए दोनों यूनिट और दुकानें सील कर दी। अवामी हलकों का ऐसी दरिया खान को हिराजी तहसीन। नौशहरा फरोज से ब्यूरो चीफ राना आरिफ की खबर के मुताबिक पीपल्स स्कूल नौशहरा फरोज में सिंधी सकाफती दिन के हवाले से सिंधी कल्चर डे को इसकी शान तरीके से मनाने के हवाले से स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मैडम ओनेंजा मेमन साहिबा और तमाम टीचर्स की जानिब से रंगारंग और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंधी सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर किया गया। स्टेज और पूरे स्कूल को अजरक और दीगर सिंधी दस्तकारी के मलबूसात से सजाया गया, जो कि सिंधी सकाफत का एक बेहतरीन मंजर पेश कर रहा था। इस तकरीब में स्कूल के तमाम टीचर्स, वालिदैन और दीगर स्कूल के हेड्स और स्टूडेंट्स ने भरपूर शिरकत की। सब ने अपने अपने तरीके से सिंधी टोपी, अजरक और दीगर मनसूआत को ज़ेब तन किया। इस दिन की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की। इस मौका पर स्कूल के तलबा और तालिबात ने सिंधी सकाफत पर तकारीर की और मुख्तलिफ सिंधी सॉन्ग्स पर टैबलोस पेश किए, जिससे इस तकरीब को 4 चांद लगे। स्कूल के हेडमिस्ट्रेस मोहतरमा ओनेंजा मेमन साहिबा ने अपने पैगाम में बताया कि सिंधी सकाफत हजारों साल पुरानी एक तहजीब है जो अमन और मोहब्बत का दर्स देती है। सिंध की सकाफत और मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है और अपनी एक अलग पहचान रखती है। पाकिस्तान हमारी जान और सिंध धरती हमारा मान है। पाकिस्तान दिल है तो सिंध इसकी धड़कन है। आज इस दिन को हम त्योहार के तौर पर मनाते हैं और पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का वाकई पैगाम देते हैं। हम एक अमन पसंद और बाशऊर कौम हैं। हमारी दुआ है कि सिंध और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और दुनिया में हमारा परचम हमेशा सर बुलंद रहे। चिन्नौर में फैसलाबाद रोड पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम मैराथन रेस और दौड़ के मुकाबले का इनेकाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले खिलाड़ियों ने मुकाबले में शिरकत की। कामयाब खिलाड़ियों में नगद इनामात तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक दौड़ के मुकाबले में नौजवानों ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया। मुकाबले के दौरान मुख्तलिफ इकसाम के मजबूत और नफीस दौड़ें पेश की गई। जजेस ने दौड़ की मजबूती, नफासत और म्यार को मद्देनजर रखते हुए नताज मरतब किए और दूसरी जानिब खेलों के मैदान वीरान होते जा रहे हैं। हुकूमती आदम तवज्जो की बाइस नौजवान नस्ल मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों से दूर होती जा रही है। रावलपिंडी ताइबा होप फाउंडेशन, रुखसाना नईम आई केयर और लेंस बाकी बाहिमी इश्तराक से CTO फरहाना असलम साहब की हदायत पर ट्रैफिक पुलिस डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के तमाम एहलकारों और उनकी फैमिलीज की वेलफेयर के लिए
सिटी ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में एक फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिसमें ख्वाजा फहीम बिलाल, चेयरमैन रुखसाना नईम आई केयर और उनकी टीम ने तकरीबन 150 अलकारू और अफसरान और उनकी आंखों की जदीद आलात में मुफ्त मुआयना किया और बीनाई से मुतासर तमाम मरीजों को लेंस पार्क से CEO तौलत महमूद अवान और ताइबा होप फाउंडेशन के तावन से मुफ्त एनकें फराम की, जिस पर सिटी और रावलपिंडी के तमाम टीम और तावन फरमाओं को सराहा। कैंप ऑर्गेनाइजर इंस्पेक्टर मुदस्सिर साहब की तमाम टीम ने कैंप को भरपूर कामयाबी से ऑर्गेनाइज किया और आइंदा मजीद आई कैंप्स लगाने का इंदिया दिया। माज़ीन लाड़काना के करीब आकरानी थाने के लाकब से मुलजिम जुबैदुल्लाह वल्द मोहम्मद लाशारी की मुबैना तौर पर फांसी लगी लाश बरामद हुई है। SHO गुलजार बड़ोड़ो के मुताबिक DSP डोकरी के स्क्वाड ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाकब किया था, जिसने खुदकुशी की है। ताहम मकतूल के भाई उबैदुल्लाह लाशारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस ने गुज़श्ता सुबह 10 बजे इनके भाई को हिरासत में लिया और मुबैना कत्ल किया। वाक़ये के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए डोकरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इधर सीनियर सिविल जज डोकरी ने मौका पर पहुंचकर मुआयना की और तफसीलात हासिल की। वाक़ई ने इलाके में शदीद और गम और गुस्सा पैदा कर रखा है। आल पाकिस्तान मजदा ट्रक गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के खात्मे का ऐलान। आल पाकिस्तान मजदा ट्रक गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन मीर नवाब मैगल ने कहा है कि मौजूदा हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम मुल्क के तमाम मजदा ट्रक ट्रांसपोर्ट को हदायत करते हैं कि अपना काम दोबारा शुरू करें। मजीद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आपको आगाह किया जाता है कि 8 दिसंबर 2025 से मुल्क भर में मजदा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से पुरअमन एहतजाज के तौर पर काम बंद किया गया था। हम इस मौके पर रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी चीफ के शुक्रगुजार है, जो मुल्क के अमन, इस्तेहकाम, सलामती के लिए दिन रात खिदमत अंजाम दे रही है, जिसकी बदौलत कौमी निज़ाम और माशी सरगर्मियाँ जारी है। आखिर में हम तमाम मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल और मौक़िफ़ को ज़िम्मेदाराना अंदाज में उजागर किया और हमारी आवाज़ आवाम और हुकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। जिनके मसले थे उनको मालूम होगा। इस टाइम पे हमारे 27,000 गाड़ियाँ आल पाकिस्तान में चल रहे हैं। हमारे गाड़ियों को कोई मसला नहीं है, कोई हमारे गाड़ियों को मुश्किलात नहीं है। पुरअमन एहतजाज उनके साथ दिया था, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ट्रांसपोर्ट, तो इस हवाले से ये सारे मामलात देखते हुए 7-8 दिन से, लेकिन मैदान पे कुछ नज़र नहीं आ रहे। इस वजह से हमने लाताल्लुकी का ऐलान किया और जिससे हमारे ट्रांसपोर्ट को मज़ीद मुश्किलात का सामना न हो। इन तंजीमों का मैंने नाम लिया, इनसे मैं लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। बकाया ट्रांसपोर्ट के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं, बल्कि आपको मालूम होगा 2009 से लेकर आज तक मैं इस ट्रांसपोर्ट की खिदमत कर रहा हूँ और ख़िदमत करता रहूँगा। लेकिन ये तीनों यूनियन अल्लाह वालम, मुझे तो इल्म नहीं है, बार बार इस बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, इससे पहले कि गवर्नमेंट से मैं मुतालिबा कर लेता हूँ, स्टेक होल्डर ट्रांसपोर्टरों को बिठाए ताकि ट्रांसपोर्टरों के मसाइल हल हो सके। और जतोई में मुजफ्फरगढ़ पुलिस लाइंस में जनरल परेड का इनेकाद DPO सैयद गजनफर अली शाह ने सलामी दी। तफसीलात के मुताबिक जतोई मुजफ्फरगढ़ पुलिस के दस्तों ने सलामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट किया। DPO DSP हेडक्वार्टर्स के हमरा जवानों का ट्रेन आउट चेक किया गया। पंजाब पुलिस को इस चीज़ पर फख्र है कि पाक फौज के बाद मुल्क की सबसे बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है और यही वजह है कि इनका हर जवान, कोई भी हालात हो, शदीद मौसम हो या कोई और चैलेंज, इसका हर जवान ड्यूटी के लिए मुस्तैद और तैयार होता है। जनरल परेड का मकसद आपके उठने, बैठने, बोलने, बल्कि हमारे हर एक्ट में डिसिप्लिन नजर आए। इस शदीद धुंध में कामयाब परेड के इनेकाद पर DPO सैयद गजनफर अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आप सबको शाबाश देता हूँ। A1 TV की इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।